टीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने एमएलएस की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया है, जिन्होंने दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपए की रिश्वत ली है। वाईएस शर्मिला ने याद दहानी करवाई कि केसीआर ने खुद पार्टी के इजलास में एमएलएस के बदउनवानी में मुलविस होने का एतराफ किया है। सीएम केसीआर को एक मकतूब रवाना करते हुए वाईएसआर टीपी रहनुमा ने एमएलएस की फहरिस्त जारी करने और उन्हें पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम भी लगाया है। కేసీఆర్ గారు పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీటులో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని, వాళ్ళ అవినీతి చిట్టా తిన దగ్గర ఉందని, ఆఖరికి దళిత బంధువులో కూడా ఒక్కొక్కరి దగ్గర 3 లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు అని కేసీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అవినీతికి పాల్పడే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని, వాళ్ళకు మళ్ళా టికెట్లు ఇచ్చేది లేదని కేసీఆర్ గారు చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, నిజంగానే మీరు అవినీతి చేసిన వాళ్లకు టికెట్లు ఇవ్వకపోతే ఏ ఒక తెగించిన ఎమ్మెల్యేయో లేసి నిలబడి, అయ్యా కేసీఆర్ గారు, సార్ మీరే అవినీతి చేశారు కదా కాళేశ్వరంలో, మీరే 70,000 కోట్లు తిన్నారు కదా, మీ బిడ్డ లిక్కర్ స్కామ్ లో అవినీతి చేసింది, మీ కొడుకు రియల్ ఎస్టేట్ లో ల్యాండ్ బ్యాంక్ లో అవినీతి చేశారు, ఇలా మీరే ఇంత అవినీతి చేశారు కదా, మరి మీకు కూడా టికెట్లు ఉండవా సార్ అని మిమ్మల్ని అడుగుంటే మీ ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకునేవాళ్ళు? ఈ రోజు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు కాదు మీ పేరు, కరప్షన్ లో చంద్రశేఖర్ రావుగా మీరు మారారు కదా సార్ అని మీ ఎమ్మెల్యే ఒకడెవడన్నా తెగించిన వాడు మిమ్మల్ని అనుంటే మీ ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకునేవారు సార్? ఈ రోజు ఎంత నిస్సిగ్గుగా మీ ఎమ్మెల్యేలు అవినీతి చేస్తున్నారు అని మీకు తెలుసని, తెలిసిన వాళ్ళ చిట్టా మీ దగ్గర ఉందని, ఆఖరికి 3 లక్షల రూపాయలు దళితుల దగ్గర కూడా తీసుకుంటున్నారని మీరే చెప్తున్నారంటే, మరి మీకు తెలిస్తే మీరు ఎందుకు ఆ లిస్టు బయట పెట్టడం లేదు? ఎందుకు ఆ ఎమ్మెల్యేలను బర్తరఫ్ చేయటం లేదు? అసలు మీ దగ్గర ఈ లిస్టు మాత్రమే ఉందా, లేకపోతే గత 9 సంవత్సరాలుగా ఏ ఎమ్మెల్యే ఎంత అవినీతి చేశాడు అన్న లిస్టు కూడా మీ దగ్గర ఉందా? మరి మీ దగ్గర ఉంటే మీరు ఇంతవరకు ఏ యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఎందుకున్నారు సార్ అని అడుగుతున్నాం. అసలు ఒక్క ఎమ్మెల్యే 3 లక్షల రూపాయలు ప్రతి దళిత బంధువులో తిన్నాడని మీరు చెప్తున్నారే, అంటే మీరు ఇంతవరకు మన రాష్ట్రంలో 19 లక్షల కుటుంబాల దళిత కుటుంబాలుంటే మీరు ఇచ్చిందెన్ని? 36,000 కుటుంబాలకు దళిత బంధు ఇచ్చారు. 36,000 మందికి 10 లక్షల చొప్పున ఇచ్చారంటే 3,600 కోట్ల రూపాయలు మీరు ఇచ్చినట్టు. ఒక్కొక్క దళిత బంధువులో 3 లక్షలు తిన్నారు వీళ్ళు అంటే అసలు ఎమ్మెల్యేలే 1000 కోట్ల రూపాయలు తిన్నట్టయింది కదా సార్. మరి మీరిచ్చే దళిత బంధువులో 1000 కోట్ల రూపాయలు మీ ఎమ్మెల్యేలు తిన్నారని తెలిసి కూడా, ఆ చిట్టా మీ దగ్గర ఉండి కూడా ఇంతవరకు మీరు బర్తరఫ్ చేయలేదా? ఇది బందిపోట్ల రాష్ట్ర సమితి కాకపోతే ఇంకా ఏమైంది కేసీఆర్ సార్? అసలు మీ దగ్గర ఇంత అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు అని ఎమ్మెల్యేలు మీకు దగ్గర చిట్టా ఉండి మీకు తెలిసే వాళ్ళకే మళ్ళా మీరు టికెట్లు ఇస్తామని ఇంతకు ముందు చెప్పలేదా? అంటే ఎక్కడ ఏ అవినీతి అయినా మీ ఎమ్మెల్యేలే చేశారు మీ నియోజకవర్గాలు. सिकंदराबाद के कलासीगुड़ा में एक 10 साल लड़की की मैनहोल में गिर जाने के सबब मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 4वीं जमात की तालिबा मोनिका दूध का पैकेट लेने के लिए घर से निकली थी, ताहम मैनहोल का ढक्कन खुला रहने के सबब वो पैर फिसल जाने से मैनहोल में गिर पड़ी और बह गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को मतला किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बल्दी अमले की मदद से नाश को निकाला। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि जीएचएमसी अमले की लापरवाही की वजह से मोनिका की जान गई है। वाक़े की इतला मिलने पर मेयर अजीम तर बल्दी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की हैं और लापरवाही बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। आपको बता दें कि रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, मेयर अजीम तर बल्दी हैदराबाद समेत दीगर अवामी नुमाइंदों की जानिब से 12 जीएचएमसी अहदेदारों को इस सिलसिले में अहकामात दिए जा चुके हैं, ताहम उनकी जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। जीएचएमसी अमला इतनी जल्दबाजी में था कि उसने नाले के पास एक इंतबाही बोर्ड लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। नतीजतन मोनिका की जान चली गई। आज सुबह से हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहर के दीगर नशेबी इलाकों में भी ज़रा सी बारिश के बाद सूरत हाल परेशान कुन है। अभी मौसम बरसात का आगाज भी नहीं हुआ है। कुछ देर की बारिश से ही सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं। कारें, मोटरसाइकिल बहने की इतलात भी मिली है, जो कि महकमा जीएचएमसी की जानिब से किए जाने वाले बड़े दावों की खलई खोल रही हैं। हमारा सवाल ये है कि महकमा बल्दिया ने मौसम बरसात के पेश नज़र शहर को ज़ेर आब आने से और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कितनी तैयारियां की हैं।
కమిషనర్ గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పారండి? మదర్ కూడా ఉన్నారా పిల్లలతో? బ్లేమ్ చేసేది చేస్తారు. మరి ఏం చేద్దాం చెప్పండి? అక్కడనే ఉన్నారా? చూసారా? ఏమే గంటన్నర దేవులు ఆడినా మేము దొరకలే. ఈ నుంచి ఉరికేదాకా పిల్ల వెళ్ళిపోయింది లోపల. గంటన్నర దాకా దేవులు ఆడితే దొరకలే. మీరు చూసిరా? అంటే మేము ఆడనే ఉన్నా అంటున్నా కదా. ఈయనే మేము నిలబడ్డా, పాలైనా ఇక్కడ ఉన్నాం, మేము ఈడ నిలబడ్డా ముగ్గురు. మేము ఉరికేదాకా పిల్ల వెళ్ళిపోయింది. అన్నాని కాపాడింది ఆ పిల్లని. ఫస్ట్ అన్న పడ్డాడు, పడగానే అన్న లేరా 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 అని అటు చేసి ఆ పిల్ల ఇటు వచ్చింది. అదే తప్పైంది. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने 10 साला मोनिका की नाले में गिरकर फौत हो जाने के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर बदी नजमनास के तारक रामाराव को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया है। करीमनगर एमपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये एक इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि 10 साला मोनिका अपने भाई की मदद करने की कोशिश में नाले में गिर गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। लड़की की मौत सिविक बॉडी और जीएचएमसी की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैनहोल्स, गड्ढों और आवारा कुत्तों की वजह से होने वाली अमवात की जिम्मेदारी लेते हुए वजीर बदी नजमनास केटीआर को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी रहनुमा ने तंज करते हुए ये भी कहा कि ड्रोन शॉट्स की ख्याली दुनिया हक़ायक़ को छुपा देती है। बंडी संजय ने सवाल किया है कि महकमा बदी नजमनास को बेदार होने और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मजीद कितनी अमवात दरकार है। उन्होंने तमाम खुले नालों और मैनहोल्स का फौरी जायजा लेने और दोबारा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने से रोकने के इक़दाम का मुतालबा किया है और मोनिका के अहले खाना के साथ इंसाफ की मांग की है। शहर हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल्स की जानिब से स्वच्छ केयर नामी एक सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। केयर हॉस्पिटल नामपल्ली की जानिब से स्वच्छ केयर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डॉक्टरों और अमले ने मौसम जाहिर मार्केट में शजरकारी की। इस मौके पर अतराफ व अकनाफ की साफ सफाई भी की गई है। सैयद कामरान हुसैन हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने स्वच्छ केयर मुहिम से मुताल्लिक़ बताया कि अस्पताल के अतराफ व अकनाफ में साफ सफाई को यकीनी बनाना इस मुहिम का मकसद है। इसके तहत शजरकारी भी की जा रही है। दुकानदारों में कूड़ेदान भी तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली लोगों को सफाई की अहमियत के बारे में आगाह करने के लिए मुख्तलिफ बेदारी मुहिम भी चला रहा है। सैयद कामरान हुसैन ने मुआशरे की तरक्की में सफाई को अहम करार देते हुए अपने माहौल को साफ सुथरा रखने का मशवरा दिया है। इस प्रोग्राम में केयर हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट्स के अलावा अमले व दीगर ने भी शिरकत की। नमस्ते, मेरा नाम कामरान हुसैन है। मैं केयर नामपल्ली का हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। आज हमने केयर नामपल्ली में स्वच्छ केयर नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। स्वच्छ केयर के अंतर्गत हम केयर नामपल्ली के आसपास के इलाके को, अपने सराउंडिंग्स को हम ये कमिटमेंट लेते हैं कि हम उसको साफ रखेंगे। हमने आसपास के इलाके में साफ सफाई की, कुछ प्लांट्स भी हमने प्लांटेशन किया और जो वेंडर्स हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम डस्टबिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कचरा ना हो और आसपास की सराउंडिंग्स हमारी क्लीन रहें। ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार ने भी कुछ साल पहले स्वच्छ भारत करके एक अभियान चालू किया था और यही हमारी मुहिम रहेगी कि हम आसपास के इलाके को साफ रखें। सफाई में ही स्वास्थ्य है और अगर सफाई रहेगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यही हमारा कमिटमेंट है टुवर्ड द लार्जर सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने अहल अफराद को कल्याणा लक्ष्मी चेक्स हवाले किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने 33 अफराद को कल्याणा लक्ष्मी चेक्स सौंपे। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस ने बिला ताखीर चेक्स अवाम में तकसीम करने की हिदायत जारी की है, जिस पर
अमल आवरी करते हुए इस्तीफा कुनिंदगान को चेक्स दिए जा रहे हैं। संतोष नगर कॉरपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर, कुर्मागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा इब्तदाई मजलिस के सदूर व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मंडल ऑफिस में आज कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। 33 चेकों की तकसीम हुई। तकरीबन 33 लाख से जायद की रकम की चेकों की तकसीम अमल में आई गई। नकवी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की पार्लियामेंट की हिदायत पर इस तरह साहब की हिदायत है कि चेकों की फौरी तैयारी के बाद बिला ताख़ीर चेकों की तकसीम को यकीनी बनाएं। जैसे ही एमआर ऑफिस से इत्तला मिलती है फौरी आके चेकों की तकसीम करते हैं। मज़ीद भी चेकों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब और नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुर्मागुड़ा शफाक साहब यहाँ मौजूद है और इस एरिया के वाइस सदन की भी काउंसलर इसमें शरीक थी। बहरहाल आइंदा भी इस तरीके की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इस्तीफा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए ने अपने हल्के के सैदाबाद मंडल के 17 अफराद को चेक्स हवाले किए हैं। इस मौके पर मलकपेट के आरआई हरी बाबू के अलावा इस्तीफा कुनिंदगान पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में होने वाली बारिश के नतीजे में जहां सड़कें ज़ेरे आब आई हैं, वहीं एक आरटीसी बस का आधा हिस्सा भी पानी में डूब गया है। आज होने वाली मूसलाधार बारिश ने कई सड़कों को तालाबों में बदल दिया। शहर के कई इलाकों से मोटरसाइकिलें, कारें बहने के वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। वहीं एक आरटीसी बस भी पानी में डूब गई है। जराये ने बताया कि लिंगमपल्ली रेलवे अंडरब्रिज के नीचे सैलाबी पानी जमा हुआ था। इस दौरान आरटीसी बस ड्राइवर पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका और पुल के नीचे चला गया। ताहम पानी का बहाव अचानक बढ़ गया और बस का आधा हिस्सा डूब गया। इंजन में पानी दाखिल हो जाने की वजह से बस वहीं रुक गई। सैलाब का पानी बस में दाखिल होते देख मुसाफिर खौफजदा हो गए और फौरन बस से बाहर निकल आए। सभी मुसाफिरीन के महफूज रहने की इतला मिली है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और सैदाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हैश ऑयल की सप्लाई और फरोख्त में मुलविस 5 अफराद को पकड़ लिया है। गिरफ्तार किए गए 5 अफराद में से 2 की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के रहने वाले जी बंडू और कापू चंदर के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद शहर के एक मंशियात फरोश को हैश ऑयल फरोख्त करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। डीसीपी हैदराबाद नारकोटिक विंग गमी चक्रवर्ती ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखा एजेंसी से हैश ऑयल सप्लाई किया जा रहा है। आसानी से पैसा कमाने के लिए ये टोली हैश ऑयल को 2000 रुपये फी मिलीलीटर फरोख्त कर रही थी। उन्होंने बताया कि 5 सब पेडलर्स और 11 सार्फिन की निशानदही की गई है। ज्यादातर सार्फिन डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और IT मुलाजमीन बताए गए हैं। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 लीटर से ज्यादा हैश ऑयल, 5 मोबाइल फोन और एक कार बरामद कर ली गई है और तमाम मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया है। डीसीपी ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से नौजवानों और तुलबा से पुरजोर दरख्वास्त की है कि वो मंशियात का शिकार न हो और वालिदैन से अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखने बिला झिझक पुलिस से रुजू करने की दरख्वास्त की गई है। समाज दुश्मन सरगर्मियों को रोकने और मंशियात से पाक शहर बनाने के लिए उन्होंने पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की है और किसी भी किस्म की समाज दुश्मन सरगर्मियों की इतला देने के लिए फोन नंबर 8712661601 पर रब्त करने की ख्वाहिश की है। కాచిగూడ ఎక్సైజ్ పిఎస్ ఇన్ని దాంట్లో ఇతను 2018 నుంచి ఈ హ్యాష్ ఆయిల్ బిజినెస్లో ఉన్నాడు. దాని తర్వాత 2022లో లాస్ట్ కేసు. ఆ కేసు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇతను ఇంకా పద్ధతి మార్చుకోకుండా ఇలాగే జీమాడుగులలో ఇతనికి ఉన్న పరిచయాలు చంద్రరావు, మందు వీళ్ళ సహకారంతో అక్కడి నుంచి హ్యాష్ ఆయిల్ సప్లై చేయించుకుంటాడు. ఇంకా మెయిన్ సప్లైర్ వీళ్ళ మీద 2 ఉన్నారు. ఒకరు ఆల్రెడీ వైజాగ్లో అరెస్ట్ అయినట్టు మాకు తెలిసింది.
ఇంకొక మెయిన్ సప్లయర్ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో ఈ హ్యాష్ ఆయిల్ అతను అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు, అతన్ని కూడా ఏపీ పోలీస్ సహాయంతో అతన్ని కూడా త్వరలో పట్టుకుంటాం. సంతోష్ రెడ్డి కింద ఇంకో ఇద్దరు సబ్ పెడ్లర్స్, వాళ్ళు సాయి భరత్ అండ్ హరితేజ, వీళ్ళిద్దరూ కూడా అంబర్పేట సరూర్నగర్ ఏరియాలో ఉంటారు. అయితే వివరాలకు వెళ్తే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇదంతా కూడా విశాఖపట్నం నుంచి వస్తుంది. అక్కడ ఉన్న ఉన్నతాధికారులతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అక్కడ ఇప్పుడు కల్టివేషన్ జరగట్లేదు, ఏదైతే వస్తుందో ఒరిస్సా నుంచి వస్తుంది. దాని తర్వాత వీళ్ళు అక్కడి నుంచి గాంజా తీసుకొని దాన్ని కొంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఇక్కడ హైదరాబాద్కి సప్లై చేస్తున్నట్టుగా మాకు తెలిసింది. అయితే సంతోష్ రెడ్డి దీన్ని ఒక్కొక్క 1 kgలో 200 బాటిల్స్ తయారు చేస్తాడు. అంటే 5 grams బాటిల్స్ లాగా తయారు చేయడం. అండ్ ఎవరైతే కన్స్యూమర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి 5 grams ఇస్తాడు. అండ్ ఎవరైతే సబ్ పెడ్లర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి బల్క్ క్వాంటిటీ కావాలంటే 20 grams బాటిల్స్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటాడు. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క 5 ml హ్యాష్ ఆయిల్ 2,000 నుంచి 2,500 3,000 వరకు हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,171 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। मरकजी सेहत महकमे के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक आज दर्ज किए गए केसेस का मवाजाना जुमा को दर्ज किए गए केसेस से करने पर मामलों में मामूली सी गिरावट आई है। ताहम सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 51,314 हो गई है। कोरोना से 40 अमवात के सबब कोरोना महलूकीन की कुल तादाद 5,31,508 रिकॉर्ड की गई है। शरह अमवात 1.18% बनी हुई है। सेहत महकमे ने बताया कि कुल 4,43,56,693 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब हुए हैं। शरह सेहतयाबी 98.7% है। एक दिन में 1,94,134 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कुल टेस्ट की तादाद 92,64,96,579 हो गई है। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क में टीका अंदाजी मुहिम भी जारी है। एक दिन में 3,875 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। अब तक कुल 220,66,63,094 अफराद कोरोना टीका ले चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।